We were discussing about catalysis, and we were discussing about heterogeneous catalysis and homogeneous catalysis, right? तो उसमें आप after looking at heterogeneous catalysis and looking at the positive aspects of heterogeneous catalysis, it proved out that heterogeneous catalysis is always preferred commercially. Can anyone tell me a specific reason for that? Ki why heterogeneous catalysis is preferred specifically? They're physical, based on physical properties. अलग-अलग होते हैं. Very good. The physical phase, the phase of the catalyst and the reactant is different. So उससे क्या फायदा होता है बेटा? Less energy. Separate the products and catalyst. Separation is easy. Separation. Second, separation of catalyst and product is easy. Second, what is Catalyst is regenerated. Catalyst is very good, very good. regenerated. Reusable. ठीक है, कैटलिस्ट रीजनरेट होता है और सेम कैटलिस्ट को मैं रीयूज कर सकता हूँ. That is the best part about it. So that is why it is always preferred. Okay, okay, very good. ठीक है. So then we saw that there is something called as inhibitor. There is something called as a poison. तो ये याद है? Poison होता है. Yes. Poison. What is the substance called which enhances the activity of the catalyst? Catalytic promoter. Catalytic promoter. Very good. Catalytic promoter. Promoter खुद से catalyst नहीं होता है, वो catalyst के लिए catalyst होता है. मतलब catalyst का promoter होता है उसकी activity को. वैसे हमने देखा था एक promoter जो catalyst के surface का roughness बढ़ाता है. Very good बेटा. Molybdenum was increasing the roughness of iron surface, right? Yes. Yes. हाँ, very good, very good. अच्छा, वैसे poison क्या करता है? Stop the reaction. The reaction. It stops. It Stop doesn't the stop the effect of reaction, बेटा. catalyst. It stops the catalytic activity of the catalyst. वो catalyst का catalytic activity को खत्म करता है. ठीक है? तो ये promoter और poison both are in terms of catalyst only. ठीक है? वो reaction को stop नहीं करता बेटा. वो catalyst का काम stop करता है. Catalyst का काम क्या है? Reaction को तेजी से आगे बढ़ाना. तो एक टाइम के बाद हमको रिएक्शन कंट्रोल करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें पॉइजन डालेंगे ताकि कैटलिस्ट थोड़ा शांत हो जाए और मेरा रिएक्शन कंट्रोल में आ जाए. वैसा. ओके, सर तभी भी रिएक्शन चालू रहेगा ना? हाँ, रिएक्शन चालू होगा बेटा, बट रिएक्शन कंट्रोल में रहेगा. ऐसा. अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस आर डेंजरस ना बेटा? यस. वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शंस होती हैं, those reactions are very dangerous. उनको कंट्रोल किया जाता है by adding lead bars and all. ठीक है? अगर उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा. कैडमियम रॉड. हाँ, वेरी गुड. यस. तो अगर उनको हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा. ठीक है ना? तो वो भोपाल गैस ट्रेजेडी, देन चेरनोबिल एंड ऑल दीस 3 miles of island. 3 miles island. 3 miles island. ओके, आई डोंट नो दिस वन. मैं चेक करूंगा आज इसको. 3 miles island में देखेगा. ठीक है? ओके. एंड 3 mile island किसके ऊपर है? विच टॉपिक? ये न्यूक्लियर नहीं, कोई रियल लाइफ सिनेरियो रहेगा ना, तो कौन सा कंट्री का है वो? यस. ओके, क्या मालूम, पिछले साल आइलैंड है वो. अरे भाई 3 mile island कहीं तो होगा दुनिया में. चलो ठीक है, I'll check it. Yes. हाँ. Okay. Then if you remember, हमने एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी, these were the features of solid catalyst. rather जो heterogeneous catalyst में हम लोग एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी देख रहे थे, ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरह से स्पीड को इंक्रीज करता है. दैट विल कम अंडर एक्टिविटी का टैब. एंड सिलेक्टिविटी वाज लाइक एक कैटलिस्ट, ठीक है, सब रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं कर सकता, बहुत ही सिलेक्टिव रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा. ऑल्सो the same reactants will give me different products with different catalysts. So this was coming under the tab of selectivity. ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, यही रुके थे हम लोग. Now an example of a selectivity will be shape selective catalysis. Shape selective catalysis के अंदर zeolites करके एक कंपाउंड है which are used as catalyst. Now zeolites क्या है, इनका फंक्शनिंग कैसा है, वो हम लोग अब आगे देखने वाले हैं.
So now see this. This is the definition of your shape selective catalysis. A catalytic reaction that depends on the structure of pores of a catalyst, the structure of the pores of a catalyst and the size of the reactant and product molecules is called shape selective catalysis. मैं जो कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं उसके ऊपर जो पोर्स है बेटा, अगर आप जूम करके किसी भी मेटल किसी भी सॉलिड चीज का सरफेस देखोगे ना बेटा, तो आप उसका ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर देख पाओगे, ठीक है। और अगर आप इवन इफ यू जूम इन ऑन योर स्किन ना, यू कैन सी देयर आर मेनी पोर्स ऑन द स्किन। Yes. अपना नॉर्मल ह्यूमन स्किन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो ये भी नॉर्मली दिखता नहीं है। ऐसे ही जितने सॉलिड्स हैं, मेटल्स हैं, आपका पेन का मेटल का टिप रहता है ना, पेन जिससे आप लिखते हो उसका मेटल का टिप को भी अगर आप जूम करके देखोगे ना, उसपे भी छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे ऐसा। तो दिस इज अरे यार इसको क्या थोड़ा भाई सीधा, हाँ। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी ना when the catalytic activity of this catalyst, it will depend on the structure of the pores or the grains of the catalyst. catalyst के surface के ऊपर कैसा structure है, उसके pores कितने deep हैं, क्या उनका shape है, क्या मेरे reactant molecules हैं उनका shape, वो जो molecules हैं उनका shape इस catalyst के shape के साथ fit होता है कि नहीं, तो ही catalysis हो सकता है, otherwise नहीं होगा। So this is what is shape selective catalysis. तो shape selective catalysis में it is like a lock and key mechanism बेटा। When I say lock and key mechanism, एक ताला, ठीक है, एक ताला जो होता है उसको एक स्पेसिफिक चाबी ही खोल सकती है। A specific key can open a lock. All the keys cannot open any lock, right? Yes. 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 घर में लैच लगा है, ठीक है। अभी लैच को मैं जो नॉर्मल पैडलॉक होता है वो लॉक पर से क्या मैं लैच क्या? ओपन, लैच नहीं पता बेटा, वो No. लैच रहता ना, लैच मेरे को सच में इसका हिंदी वर्ड नहीं पता, बट लैच होता है। लैच मतलब ऐसा धड़ाम से दरवाजा बंद होता है, धड़प ऐसा आवाज आता है। Yes. हाँ. ऐसा घुमा के एक छोटा सा मतलब बॉक्स जैसा रहता है जो दरवाजे पे पीछे लगा रहता है, Yes. ठीक है। तो पैडलॉक पता है, नॉर्मल लॉक जो होता है, उस लॉक का चाबी से वो लैच मैं नहीं खोल पाऊंगा और लैच का चाबी से मैं लॉक नहीं खोल पाऊंगा। क्यों? बिकॉज उनका शेप मैच नहीं होता है। जो मेरा लॉक का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके लिए एक स्पेसिफिक की बनाई हुई है, वो ही की उसको खोल पाती है, ठीक है। वो जो चोरियां वगैरह होती है वो या तो लॉक तोड़ते हैं या फिर एक मास्टर की करके होती है, so that master key adapts its shape. That is a different thing, but if you talk about natural way, there is one key can open that specific lock. A lock cannot be opened by any other key. वैसे ही similarly मेरा जो shape selective catalysis है ना, उनका catalysis ऐसा होता है कि भाई अगर क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट के शेप से रिएक्टेंट्स का शेप मिक्स हुआ, फिट हुए, तो ही वो रिएक्शन होगा, वरना वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लिया आप लोग ने? Yes. 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 वेरी गुड। आ देखो zeolites. Zeolite is a very good example of a shape selective catalyst. zeolite एक कंपाउंड है। ये क्या है? ऐसा मत स्ट्रक्चर है, कितना प्यारा लग रहा है ये, राइट? Now see this. They are microporous crystalline solids and possess honeycomb-like structure. I don't know how many of you all have seen a honeycomb. अगर आप honeycomb को Yes. देखोगे तो hexagonal Yes. Hexagonal structure रहता है. तो ये Yes. zeolites ना, it is a category of catalysts. This zeolite is a category of catalysts. These catalysts ना, they are microporous crystalline solids. When I say microporous means very finely porous, बहुत ही छोटे छोटे pores होते हैं उसके अंदर, and they have definite structure. अभी crystalline है तो definite structure होगा ही by default. उनका structure कैसा होता है? It is honeycomb like structure. ऐसा तो सामने देखते हैं, देखो मस्त। So the general formula for zeolites,
इट्स लाइक जैसे हम लोग एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला बोलते हैं ना CnH2n+2, वैसे जियोलाइट द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दे आल्सो हैव अ जनरल फॉर्मूला। ये देखो कितना मस्त है ना बेटा, देखो होगा आपने, देखो M X/N, ठीक है, M is the metal, अच्छा Al2O aluminium oxide into X, SiO2 silicon, what is SiO2 बेटा? सिलिकॉन ऑक्साइड। Silicon वाह 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 बेटा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मेरा वाह बेटा वाह, मेरा तुमने ये कर दिया, क्या बोलते हैं, मेरी आंखें खोल दी, मुझे तो पता ही नहीं था SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिका। What is silica? You are right. Silicon dioxide is commonly एलिमेंट, called as silica. एलिमेंट। It is an element. वाह, इसमें दो अलग-अलग elements मुझे दिख रहे हैं, silicon और oxygen. It is Compound. a compound. It's not an element. किसी को नहीं पता what is silica? What is silicon dioxide? नो, नो। नहीं तो पता। अर्थ क्रस्ट में रहता है। You are coming very close to it बेटा। कौन बोला ये? शुभम। शुभम। शुभम, सिलिका इज, आप लोग ने सबने सिलिका देखा है, आपने उसको यूज किया, आप खेले हो उसके साथ? यस, कैरम बोर्ड बोला। हद नालायक है, कैरम बोर्ड पे कहां से सिलिका आ गई रे? पाउडर होएगा। इट इज नॉट अ पाउडर, इट इज योर नॉर्मल सैंड। सैंड, वाडू वाडू पता है सब लोग को? Yes. हाँ, No. सैंड इज व्हाट? नो नॉनसेंस, तुमको सैंड नहीं पता? यस, वो समुद्र किनारे, तू बीच पे जाते हो बेटा? रेती रेती। बीच पे जो Yes. रेती रहती है ना, that we are talking Yes. about, that is silica, ठीक है? यस। ये बात, and it is associated with water molecules, ठीक है? तो X, Y और Z, these are nothing but numbers which will vary accordingly, and N is the charge of the metal ion. तो ये ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स है ना बेटा, इनको हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं, अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है? ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी एक्स और एन क्या है? एक्स है। हाँ, X और Y ना बेटा, दे आर सम नेचुरल नंबर्स, ठीक है? X, Y, Z। M M is a metal, M is a metal, N जो बोल रहे हो ना, छोटा N, N for नेपाल, यस। ठीक है? So N for Niba. So this N na beta, this N is nothing but it is the charge which will be present on this particular metal ion, ठीक है? तो ये M is the representation of the metal, and N is the charge on that metal ion. यस। ठीक है? This metal is either sodium, potassium or calcium ion. Is either sodium, potassium or calcium ion, ठीक है? मेटल इन तीनों में से कोई एक होगा, बाकी का एलिमेंट्स आपको सामने दिख ही रहा है, ठीक है? अच्छा, now tell me if it is sodium, okay? If it is sodium, स्वयं संदीप कुमार। Yes, sir. हाँ, स्वयं अगर सोडियम आयन रहेगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी दिस N? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी मैं वापस कनेक्ट हुआ, इसलिए मेरे को N नहीं समझ में आया। अच्छा, हेलो हाँ गाइस, सर। गिव मी अ मिनट। तो अभी मैंने आपको बताया, सो अगर सोडियम आयन है, M की जगह अगर सोडियम है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ N? +1 सर। एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड। स्वयं आप ही बता दो मेरे को, अगर पोटेशियम रहेगा तो क्या वैल्यू रहेगी? पोटेशियम। पोटेशियम मतलब K ना बेटा? हाँ सर। अरे सामने स्क्रीन दिख रहा है बच्चे तुमको? हाँ। नहीं सर, ब्लर हो रहा है स्क्रीन। स्क्रीन ब्लर हो रहा है? नहीं, मेरा नेटवर्क इशू है सर। क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा, नेटवर्क ओके, इशू है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, कौन बताएगा?
+1 सर। +1. +1 अगर कैल्शियम रहेगा तो क्या आएगा? +2 अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, समझ गए बेटा? N is going to be the charge चार्ज ऑन द मेटल आयन। चार्ज of लिखा सबने गाइस? यस सर। यस लिखा सर सबने ये? हाँ यस यस इस फॉर्मूले को देखो, डरो मत। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इसके लिए लिखते हैं ना जनरल फॉर्मूला अपना, अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस CnH2n+2 है ना, उसके लिए हर बार n की वैल्यू डालेंगे तो मुझे रिस्पेक्टिव अल्केन अल्कीन अल्काइन मिल जाएगा। वैसे ही ये एक जनरल फॉर्मूला है, m की जगह कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ओके, एंड n is going to be the respective charge on that particular metal and z is the number of molecules of addition. I guess आप लोग ने ये भी ऐसे कंपाउंड्स पहले देखे होंगे जहाँ पे water molecule is associated with a compound. कोई एग्जांपल दे सकता है मेरे को? Am I connected? Yes. अच्छा, हाँ तो एग्जांपल दो फिर। Fe2O3.5H2O है ना, ऐसा देखा है कभी? Yes. हाँ तो ये बिल्कुल Yes. वैसा ही है, ठीक है। Z is the number of water molecules of hydration associated with it. मतलब ये क्रिस्टलीन कंपाउंड है, इसको मैं हीट करूंगा तो क्या होगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ पाउडर बचेगा, अमॉर्फस फॉर्म, है ना? यस वेरी गुड। ये देखो, एल्यूमिनियम सिलिकेट, हम लोग ने जो देखा था ना कंपाउंड, एल्यूमिनियम सिलिकेट जो उसके जनरल फॉर्मूले में था बेटा, उसका Yes. स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है। ये आपको सामने दिख रहा है। See that the reason of me Pyramid. using this video is it becomes more clear for you. As अभी crystalline compounds पता क्या होते हैं बेटा? Crystalline compounds are those compounds in which atoms are arranged in a systematic manner in a orderly fashion. Okay, तो these atoms they are arranged in a proper order in a repetitive manner. इसलिए हम लोग उसको crystalline compound बोलते हैं। अब एल्यूमिनियम सिलिकेट जो उसका एक पार्ट है, उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है बेटा, देखो, the orange one is silicon, the blue is oxygen and the white is aluminium. जो ग्रीन वाला पार्ट है ना बेटा, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखा रहा है कि देखो कैसे पिरामिडल वे में ये अरेंज्ड एटम। वो जो लाइंस उसको जॉइन दिखा रहे हैं, दे आर जस्ट शोइंग द क्या बोलते हैं बॉन्ड बिटवीन दोस टू एटम्स। अब ये एटम्स इतने छोटे नहीं होंगे, ये एटम्स एक्चुअली बड़े बड़े होंगे कॉर्नर्स पे। अगर मैं इन एटम्स का सेंटर को ज्वाइन करूं, इनके अगर ये जितने एटम्स अरेंज्ड हैं, अगर इन सब एटम्स के सेंटर को मैं ज्वाइन करूं तो मेरे को ऐसा एक पिरामिडल शेप मिलेगा। ये वो बताना चाह रहा है, ठीक है बच्चे? तो आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब ये ग्रीन पार्ट क्या होता है, ये पिरामिड क्यों दिख रहा है। ये एक्चुअली ऐसा दिखता नहीं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि अगर मैं इन सब एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करूं तो मुझे ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है बेटा? Yes. Yes. ये देखो, so ये जो खाली जगह दिख रहा है in between, so there are empty spaces in all crystalline arrangements which are called as voids, ठीक है? ये 12th में पढ़ोगे। तो these voids they are accumulated with cations and the water molecules. कौन सा cations बेटा? Metal का cations. It can be sodium, it can be potassium, it can be calcium. And the water of hydration, yeah, and the water of hydration is also present in these voids. ये देखो, zeolites are naturally found in nature in mangroves area and all, and they are also क्या बोलते हैं, also produced in the laboratory. Synthetically भी बनाते हैं और नेचर में भी पाए जाते हैं। ये देखो, zeolites are heated in vacuum. ये देखो, इसे zeolite के स्ट्रक्चर को देखूं
ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा मुझे जियोलाइट्स का। वो जो बीच में खाली जगह दिख रहा है ना बेटा, दैट इज योर void which I was talking about, empty space। वो empty space में मेरा water molecules और cations वगैरह रहता है, ठीक है। तो जब मैं इसको वैक्यूम में हीट करता हूँ जियोलाइट्स को, तब the water of hydration is evaporated, okay, and these spaces will become vacant। अभी इसको मैंने नॉर्मली क्यों नहीं हीट किया बेटा, मैं इसको वैक्यूम में क्यों हीट कर रहा हूँ जियोलाइट को? कि नॉर्मली वाटर वेपर Normally प्रेजेंट water रहता है। हाइड्रोजन रहता है। हाँ, मतलब एक साथ बोल देने का तो किसी को कुछ समझेगा भी नहीं और टीचर को लगेगा कि बच्चे आंसर दे रहे हैं। सर नहीं समझा। हाँ, नहीं किसी को समझाता, तो जिसको समझाता उनको बोलने दो। My question is, why will I heat zeolites in a vacuum? Why will I not normally heat them? बिना वैक्यूम के क्यों हीट नहीं करूंगा मैं इसको? वैक्यूम में एयर सर नहीं रहते। वैक्यूम में वैक्यूम एयर में नहीं एयर रहेगा, रहता है। मुझे आप वैक्यूम में वैक्यूम की एयर रहेगा प्रॉपर्टी तो बता रहे वो हो बेटा? एड्जॉर्ब। बोलो बेटा, बोलो। सर हाँ बोलो वैक्यूम में बेटा। एयर रहेगा तो वो में एयर रहते एड्जॉर्ब हैं होएगा ना, उसके तो ऊपर ना, वेरी एयर का गुड, मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, यस। तो हम लोग इसको वैक्यूम में इसलिए हीट कर रहे हैं, वी आर हीटिंग दिस इन वैक्यूम फॉर द रीजन, इफ यू हीट इट नॉर्मली ना बेटा, तो उसका क्रिस्टलीन नेचर जो है वो टूट जाएगा, और मेरे को वो तोड़ना नहीं है, मुझे उसके स्ट्रक्चर से ही काम है। तो जब मैं उसको वैक्यूम में हीट करता हूँ बच्चे, वैक्यूम में हीट करने के बाद क्या बोलते हैं, जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, वो इवेपोरेट हो जाता है बिना उसका स्ट्रक्चर तोड़े। ठीक है, सो नाउ दिस, ये जो एम्प्टी स्पेसेस है, यहाँ जो शेप बना है, यहाँ पे देखो सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप है, एक्चुअली नॉट सर्कुलर है, इट इज unsymmetrical shape, but this shape, this in this vacant space, in this empty space, the reactants will get absorbed and the products will be formed while the reaction is happening, catalysis जब भी हो रहा है तभी। ठीक है, ये देखो रिएक्टेंट आया, प्रोडक्ट बन गया, देखा आप लोग ने? यस जियोलाइट्स को हमने वैक्यूम में हीट किया। So this proves that they are shape selective catalysis. Now, इनका applications there in a variety of processes, softening and purification. तो वगैरह होता है घरों में, एक्वागार्ड नहीं पता बेटा? यस पता है। हाँ, यस वो एक्वागार्ड के प्योरिफिकेशन में वी आर यूजिंग जियोलाइट्स इन द फिल्टर। तो फिल्टर क्या करता है बच्चे, वो अपना क्या बोलते तो भी इम्प्योरिटीज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने वेकेंट स्पेसेस में उनको ये कर लेता है, रोक लेता है, एंड वाटर को प्योरीफाई। जियोलाइट्स आर इन फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, वैसा इन ये जियोलाइट से बेटा, ये देखो इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का यूज क्या है बेटा, इसका यूज इज क्रैकिंग ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन इज नथिंग बट अ कार्बन कंपाउंड विथ 8 कार्बन। 8 बॉन्ड। 8 कार्बन। यस, वेरी गुड। सो इसका क्रैक करके हम लोग छोटा छोटा हाइड्रोकार्बन्स निकालेगा, जिसको हम आगे यूज करेंगे। सो मिक्सचर ऑफ C1 C2 C3 हाइड्रोकार्बन्स, HZSM5, this is the name of the zeolite which is used. फुल फॉर्म क्या है इसका? HZSM5 का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा पूछ रहे हो बेटा आप मेरे को? यस। आप गेस करो क्या होगा उसका फुल फॉर्म, गेस करो, मतलब गूगल मत करना, जस्ट ट्राई टू क्रैक। हाइड्रोजन एक, ओके। जियोलाइट। सिलिका। एक तो जियोलाइट होगा, ओके। जेड जियोलाइट। सिलिका। मेटल। सिलिका मेटल। मेटल 5। अच्छा, उसका फुल फॉर्म है जियोलाइट सुकोनी मोबाइल 5, मोबिल 5। जियोलाइट क्या जियोलाइट? जियोलाइट सोकोनी
SOCONY MOBILE -5। ठीक है, तो इसका नेमिंग वगैरह उसका नेमिंग वगैरह डिटेल में आप लोग नहीं घुसते हैं उसमें उतना, ठीक है। ये देखो, हेक्सेन fuel synthesis of motor fuels using, अभी देखो ZSM5, इसका फुल फॉर्म देखो बेटा, जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। इतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। दिस इज अगेन एज आई सेड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो अगर कहीं आपको ये आता है, क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर, इसका स्ट्रक्चर में घुसेंगे तो एक डिफरेंट पूरी नई किताब खोलनी पड़ जाएगी अपना। तो ये सब डिटेल में तब करेंगे जब हम लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। सो this zeolite converts alcohols into different mixtures of hydrocarbons, petroleum and all, इसमें यूज होता है। Okay, but these zeolites ना, they are used for safer and बोलते हैं environment safe रहे करके अपन ऐसा zeolites वगैरह का एप्लीकेशन देते हैं। अच्छा, जब हम लोग कैटालिसिस की बात कर ही रहे हैं तो अब आपको लग रहा होगा कि ये केमिस्ट्री से बायोलॉजी का डायग्राम कहाँ से आ गया, राइट? यस Yes. अच्छा, तो जब हम लोग कैटालिसिस की बात करते हैं बेटा, हमारे बॉडी के अंदर भी कैटालिसिस होते हैं, कैटालाइज होता है। व्हाट इज कैटालिसिस बेटा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, Enhances the reaction. दैट इज अ कैटलिस्ट। आई एम आस्किंग व्हाट इज कैटालिसिस? Process in which catalyst is involved. Very good. A reaction or a process in which a catalyst is involved. Such a reaction is called as a catalysis reaction. कैटालिसिस। ये बेटा अपने बॉडी में Yes. खाना पच रहा है, अपने बॉडी में एयर जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो वो सब यूटिलाइज होता है, वो खाना का डाइजेशन होकर के अपने को एनर्जी मिलता है। तो ये खाना डाइजेस्ट होना इतना आसान नहीं है। तो ये खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है कैटलिस्ट में, एंजाइम्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। These enzymes are called as biocatalysts. ये सुना है पहले? Yes, no, maybe. No. No. Okay. The enzyme सुना है? Enzymes होता है कुछ? Yes. ये enzymes जो होते हैं ना बेटा, आपको पता है आपके मुंह में enzymes प्रेजेंट है, आपके मुंह में सलाइवा है ना, उसके अंदर एंजाइम्स होता है। वो खाना आप खाना जब से चबाना शुरू करते हो ना, वो पेट में जाने तक हर एक स्टेप में डाइजेशन होता रहता है, उसका ब्रेकडाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स होता रहता है। बिकॉज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड व्हिच वी ईट, इट इज नॉट क्या बोलते हैं, इजी फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट इट। सो फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट इट, इट हैज टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। जिन्होंने बायोलॉजी लिया होगा 11th-12th में, उसको ये डिटेल में पढ़ लेंगे। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, whatever nutrition we intake, that is क्या बोलते हैं, digested in the body at a faster rate with the help of enzymes. नॉर्मल रेट से अगर जाएंगे ना बेटा, तो अगर आप सुबह खाना खाए ना, तो आपको रात को भूख लगेगा। इतना स्लोली डाइजेशन होता है बॉडी में। इसीलिए गॉड ने क्या बोला, चल भाई थोड़ा एंजाइम्स डाल देता हूँ ताकि रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाए, वैसा। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, these enzymes they help us to क्या बोलते हैं, digest the food and to expedite the different processes inside the body, वैसा। So they are also called as biocatalysts. This person is looking so dangerous. ये देखो, you are chewing food. This is how you are chewing food. Half of you must be eating food right now. It is lunch time. तो आपने एक कान में ईयरफोन लगाया होगा और बाकी अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से इसको देख रहे हैं। ना भाई, I know it. ठीक है? No. ठीक है, सब नहीं कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे, होता है। मैं भी कभी कंपनी मीटिंग्स में खाना खाते खाते मीटिंग अटेंड करता हूँ। That is very natural. ठीक है? So अभी देखो, we are chewing food. दांतों से खाना चबाते हैं। So this amylase is working on starch. Amylase is the enzyme which is working on the starch which is present inside your food. ये बेटा, starch किस में रहता है? राइस में रहता है, चपाती में रहता है, और पोटैटो, राइस,
potato, rice, everything. ठीक है बेटा, whatever we are eating. Wheat. Very good. So all these foods, whatever we are eating, they have small amount of starch, protein, fat, सब कुछ होता है उसमें. Starch is nothing but a carbohydrate. ठीक है. तो the enzyme in the mouth which helps to break starch into simpler compounds is your amylase. ठीक है. वो bigger सर रिपीट करो सर, नहीं समझा. हाँ बच्चे, हम लोग खाना खाया, चपाती खाया, राइस खाया, दाल खाया, सब्जी खाया, ठीक है. ये सब के अंदर क्या रहता है बेटा? इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. ठीक है. यस. सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, नाउ all these proteins, fats and carbohydrates, they are nothing but they are complex biomolecules. These complex biomolecules, they need to be broken down into simpler compounds, simpler substances, so that those substances can be what do we say, assimilated inside the body and they can give energy to you. ऐसा. ठीक है. So this energy, ये जो energy मिलता है ना, वो पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तब मिलता है. ऐसा. ये जो मेरे एंजाइम्स हैं, these enzymes are helping me to break down these complex carbohydrates, proteins and fats into simpler molecules, and this process it starts from the mouth itself. तो मुंह के अंदर जब हम लोग खाना चबा रहे होते हैं, तब अपना सलाइवा जो होता है, अपना जो स्पिट होता है, वो खाने के साथ मिक्स होता है. उस सलाइवा के अंदर अमाइलेज करके एक एंजाइम रहता है जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल स्टार्च के अंदर तोड़ता है ताकि बॉडी के अंदर जाए तो वो डाइजेस्ट हो जाए, वो बॉडी के अंदर एसिमिलेट हो जाए. ओके बेटा? यस. हाँ. सो दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग अ बिट ऑफ बायोलॉजी इन केमिस्ट्री. देखो अभी नाउ you go through your esophagus. You are aware of all this? esophagus, mouth के टेंथ तक तो किए हैं आप लोग. हाँ. अच्छा. स्टमक के अंदर भी ना बहुत सारा जूसेस रहता है जो खाने के अंदर मिलता है. ठीक है. So these juices they contain enzyme. One of them is pepsin. Protein molecules होता है. प्रोटीन क्यों जरूरी होता है बेटा? For building our body. ठीक है. बॉडी का बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इज वेरी मच एसेंशियल. अभी प्रोटीन आर नथिंग बट दे आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स एंड दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट करके अपना ब्लड के अंदर जाएगा, वो ब्लड उस मसल्स पे जाएगा, तब मसल ग्रो होएगा. ठीक है. तो ये प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन एक क्या बोलते रहता है जो स्टमक के अंदर तोड़ता है. फिर देखो प्रोटीन एक और क्या बोलते हैं एंजाइम इज ट्रिप्सिन. Then sugars are broken into simpler molecules by pancreatic amylase. Pancreas के अंदर, pancreas is a body का organ. I don't know why I'm getting into biology. हाँ बेटा बोलो. पर जो एरो के ऊपर जो नेम्स लिखा है वो कैटलिस्ट है क्या? Excellent. Yes. जो एरो के ऊपर नाम लिखा है that is your enzyme, that is your catalyst. अच्छा, एंजाइम्स के बारे में एक और खास बात है. All these enzymes are shape selective catalysts. ठीक है. जैसे जियोलाइट देखा था हमने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वैसे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है, जो बायोकैटलिस्ट है, दे आर आल्सो वेरी शेप सिलेक्टिव. तो ये ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, लाइपेज, ये सब इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, शुगर्स और फैट्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स. लिख लो आप लोग. लिख लिया? नो. क्यों? ये आप अगर क्वेश्चन में आया, एग्जाम्स में क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब एंजाइम कैटलिसिस और राइटिंग ब्रीफ अबाउट बायोकैटलिस्ट, तब अगर आप एग्जांपल्स देके लिखोगे तो आपके आंसर में वेटेज बढ़ता है बेटा. द टीचर विल थिंक दैट यस ही द पर्सन हैज डन सम स्टडीज, दे हैव डन सम हार्ड वर्क. तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज नॉट बैड बच्चे. Done. Cool use. ठीक है. So all these parts they are containing many enzymes which break down these protein, sugars and fats. फिर खाना जाता है small intestine में. अभी
small intestine में amino acids, glucose, fructose, galactose, fatty acids, and glycerol. These are the amino acid is a protein. Proteins are made up of amino acids. तो food जो है ना, it is breaking down into these simpler forms. Amino acids, glucose, fructose, galactose. Glucose, fructose, galactose, they are all examples of carbohydrates. Fatty acids and glycerols are all examples of fats. ये आप 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर डिटेल में पढ़ा जाएगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट. And all these food is assimilated in your small intestine and it is used for energy. तो आप चलते हैं, बोलते हैं, भागते हैं, all this energy, ठीक है? So all these biological reactions which are happening in our body, they are being catalyzed by enzymes. Enzymes are nothing but your biocatalysts, ठीक है? They are also called as biochemical catalysts. And this phenomenon which is happening inside your body is called as your biochemical catalysis. Chemicals भी है. सर पीछे लो ना, वो लिखना है. सर पीछे लो ना, पीछे करो. चलो. पीछे. हाँ डन सर.